I request you to please continue to pray. और आप सबसे निवेदन है कि आप निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, And so that may the Lord grant a special grace and may the Lord lead us and guide us. ताकि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हम पर बना रहे और वो हमारी निरंतर अगुवाई करते रहें। We have been studying the book of Ephesus. और हम जो है इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। Yeah, we have seen that the book of Ephesians is divided into four sections. और हमने देखा था कि इफिसियों की पत्री को अध्ययन करने के लिए हमने 4 भागों में बांटा था। So first section is completed and we are in the midway of the second section. और पहला भाग को हमने पढ़ लिया था और दूसरे भाग के बीच में हम पहुंच चुके हैं। So please recall your memory. We have said that in each of these books, in the chapter 1, there are two sections, chapter 2, there are two sections, and chapter 3, there are two sections. तो हमने पहले ही अध्ययन के समय आपको बताया था कि इफिसियों की किताब के प्रत्येक जो भाग हैं, अध्याय हैं, उसको अध्ययन के लिए हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला अध्याय भी 2 भागों में है, दूसरा अध्याय भी 2 भागों में है और तीसरा अध्याय भी 2 भागों में बटा हुआ है। So in our previous studies, we understood that in the chapter 1, Apostle Paul was exposing the heavenly spiritual blessings in the first part. And in the second part, he was praying so that the people of God may practice, may experience those heavenly spiritual blessings. और हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की किताब के पहले अध्याय को 2 भागों में बांटा था। पहले भाग में उन्होंने स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के बारे में कहा था और दूसरे भागों में प्रार्थना किया था ताकि कलीसिया उस आशीषों को अनुभव करे। In the second chapter, again two portions. In the first portion, he was explaining how a pagan and a non-Jew, the status and how he was regenerated, how the work of cross has joined these Jews and Gentiles to become one body of Christ. और दूसरे अध्याय को भी अध्ययन के 2 भागों में बांटा गया है। उसके पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार गैर यहूदियों को और अन्य जातियों को जो संसार की रीति पर चलने वाले थे, उनको कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार एक कर दिया, उन्हें एक साथ मिला दिया। In the second section, where Apostle Paul says that Gentiles are the people of God in the family of God, and Christ is the head, and Christ is the cornerstone, and Christ is building his church. और हमने दूसरे भाग में देखा इफिसियों के 2 अध्याय के दूसरे भाग में कि किस प्रकार अन्य जातियों को परमेश्वर ने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपने परिवार में शामिल किया और उस परिवार में मसीह उनका सिर है, वही कोने के सिरे का पत्थर है और किस प्रकार हमने देखा कि मसीह ने अपनी कलीसिया को निर्माण किया। So, in one word, to say that in the second chapter, he was talking about human helplessness, helpless condition, and the gift of salvation. And the second part, the church, its foundation, and its structure. लगता है फ्रीज हो गया है। हेलो। सिग्नल की प्रॉब्लम है शायद। Let us hold for some time. He will join again. Hope there is some kind of signal disturbance. Now I'm audible, uncle? Yes, now you're audible. Please go ahead. Yes, uncle. There is network issue. Please repeat last sentence, uncle. Yeah.
So, second chapter, we have seen that the first part, the human helpless condition and the gift of salvation, and the second part, the church, its foundation and its structure. तो हमने देखा कि दूसरे अध्याय के पहले भाग में किस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य की हम एक दीनहीन अवस्था को देखते हैं कि वो किस प्रकार पापों के उद्धार के लिए अपनी मदद नहीं कर सकता, और पाप जो है उसकी क्षमा और उद्धार परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और दूसरे भाग में हम देखा कि चर्च की किस प्रकार नींव रखी जाती है और चर्च की संरचना कैसी होती है। So now let us plunge into third chapter. The third chapter is again divided into two sections. The first section consisting verse 1 to verse 13, the church consisting Jews and Gentiles, which was actually a mystery. और इफिसियों की किताब तीन अध्याय को अध्ययन करने के लिए फिर से दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग में एक अध्याय से 1 वचन से 13 वचन तक है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार अन्य जातियों और यहूदियों के द्वारा एक साथ मिलकर बहुत रहस्यमयी कलीसिया को कैसे बनाया गया है। And then the second part, Paul was praying so that the unfathomable love of God be known by his people. और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर के उस महान प्रेम को बताया है जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता, ऐसे प्रेम के बारे में वर्णन किया है। So in the first part, how God united Jews and Gentiles together, which was a mystery hidden in the time past, but he revealed this truth through the apostles to us. और जो पहले भाग में देखते हैं तीसरे अध्याय के 1 से 13 वचन तक कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहूदियों को और अन्य जातियों के एक साथ जोड़ा, जबकि वो एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि पुराने समय में हुआ, उसको पत्रियों के द्वारा हम तक कैसे प्रकट किया गया। So let us first read the text of the scripture and then we will try to understand the summary of the truth. आइए हम वचन को पढ़ें और उसके बाद इसके सत्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करें। For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you, how that by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand the knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. Up to verse 7. इफिसियों की किताब 3 अध्याय 1 से 7 तक लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जिसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। So, in this passage, he was trying to explain that the mystery which he already began to share earlier, now he is continuing. और इन वचनों में, इस पैराग्राफ में प्रेरित पौलुस उन सच्चाइयों को प्रकट कर रहे हैं जिसके रहस्य को वो पहले भी बता चुके थे, उसी को आगे उसे समझा रहे हैं। We find it in verse 3. He says, by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which
when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. और 3 और 4 वचन में ऐसा कहते हैं, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। So he was talking about the mystery here. तो वहां पर ये जो है प्रेरित पौलुस एक रहस्य के बारे में बात करते हैं। So I don't know, it Hindi it is told as a secret, brother. Rahasya means secret, no? यस अंकल, Is there भेद या any रहस्य जिसे is there जिसे any other word for mystery in Hindi? यस अंकल, भेद बोल सकते हैं या रहस्य भी बोल नहीं सकते नहीं, हैं। रहस्य नहीं होता, because theologians say that a mystery is a spiritual insight or revelation from God unknown to the previous generations. It is not a riddle, not a secret. तो इसे भेद कहते हैं अंकल। यहाँ पे जो बाइबल में हमारे न्यू किंग जेम्स वर्जन में भेद लिखा गया है। अब भेद वैसे ही बता दी, मगर सीक्रेट का मतलब इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। यस अंकल, सीक्रेट मतलब होता है कोई गुप्त जानकारी। But here, here the theologians say that the mystery means it is to be understood with spiritual insight or revelation from God. Actually, this was unknown to the previous generation, but it is unfolded to the present generation in the New Testament through apostles and prophets. ओके, तो हम देखते हैं ये जो भेद या रहस्य जिसे हम कहते हैं, ये आत्मिक दृष्टि के द्वारा वो मिला हुआ या प्रकाशन के द्वारा मिला हुआ विषय है जो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। जो बातें पहले की पीढ़ी को मालूम नहीं थी, वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाशन या आत्मिक दृष्टि से जब मिलता है, उसे हम रहस्य या भेद कहते हैं। I believe even Apostle Paul also telling the same thing here in verses 3 and 4, 3, 4, 5. Let me read it again, because we need to understand with full clarity. Because only when we understand with full clarity, then only we'll be able to help others. और जब हम इस भेद को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए आइए हम 3, 4, 5 वचन को फिर से पढ़ें। How that by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of man, as it has as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. और 3, 4, 5 वचन में ऐसा लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। So he says, the mystery which I wrote before briefly. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो भेद है जो पहले ही मैंने संक्षेप में तुम्हें लिखा है। Where did he write? He wrote in Ephesians chapter 1, verse 9, which we have already read. और उन्होंने कहाँ लिखा है? इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 9 वचन में, जो हम पढ़ चुके हैं। Let me read once again for you. Chapter 1, verse 9. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed to himself, that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. और 9 और 10 वचन में पहले अध्याय कैसे लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। He tells the same mystery as a mystery of gospel, Ephesians chapter 6 and verse 19. और इसी सच्चाई को वो फिर से प्रकट करते हैं इफिसियों की किताब 6 अध्याय के 19 वचन में सुसमाचार के रूप में। So he was asking the believers, Christians at Ephesus, to pray for him, verse 18 and 19.
praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. और वो इफिसियंस के एक विश्वासियों को कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं मसीह के भेद को बता सकूं। और 18 और 19 वचन में ऐसा कहते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। Apostle Paul was talking about mysteries in the book of Ephesus. इफिसियों की किताब में प्रेरित पौलुस जो है विशेष भेद की बातें कहते हैं। So we have already seen the definition of mystery, saying that it was hidden in the previous generations, but God revealed what was hidden to the previous generations to our generation through apostles and prophets. तो हमने जान लिया कि भेद की परिभाषा क्या होती है। भेद और रहस्य वो बातें होती है जो पहले की पीढ़ियों को मालूम नहीं होती है, परंतु अभी की पीढ़ियों के ऊपर में परमेश्वर के द्वारा उसे प्रकाशन दिया जाता है, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा। In the chapter 1, verse 9, Apostle Paul was trying to say that God has revealed his will through Jesus Christ, and that will is the will of the gospel, the purpose of the gospel, the person behind the gospel, the central truth, revolving around the gospel. और प्रेरित पौलुस जो है वो पहले अध्याय के 9 वचन में बताते हैं कि कैसे जो है भेद, वो अपनी इच्छा का भेद जो मसीह में है उसको प्रकट करते हैं, और उसको ही वो आगे जाके उसके पीछे जो सुसमाचार है उसे भी वो प्रकट करते हैं। In fact, gospel means the Lord Jesus Christ himself. और सुसमाचार का मतलब ही है स्वयं यीशु मसीह। We will understand when we read Mark's Gospel, chapter 1 and verse 15. और ये वचन हम समझते हैं जब मरकुस की किताब 1 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं। Maybe some other time we will study that verse because we need to complete this particular topic now. और हम उस वचन को फिर कभी पढ़ेंगे क्योंकि हमें इस वचन को पूरा करना है। So God has revealed the heavenly blessings through Jesus Christ. How? Through the gospel. तो हमने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, हाँ, स्वर्गीय आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, और वो किस प्रकार वो है सुसमाचार के द्वारा। So in the Colossians chapter 2, verse 2, there Apostle Paul tells the same thing in a different perspective. और कुरिन्थियों की किताब अध्याय 2 के 2 वचन में इसी बात को प्रेरित पौलुस दूसरी रीति से प्रकट करते हैं। Please turn with me to Colossians chapter 2, verses 1 to 2, because this evening I would like every one of you to understand the very importance of the gospel. Apostle Paul is teaching us through book of Ephesus. आइए इस वचन को हम निकालें, कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का 1 और 2 वचन, ताकि हम जो प्रेरित पौलुस के द्वारा सुसमाचार को बताया जा रहा है इफिसियों की किताब में उसे समझ सके। For I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding. Please remember please try to understand the statements which I'm going to read. To the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. कुरिन्थियों तुम्हारे और सबके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं।
आपका सिग्नल कट कट हो रहा है भैया, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। आप वीडियो बंद कीजिए थोड़ा, सो दैट ऑडियो you can have a full bandwidth, so that there will not be this. Here the point is, Paul was trying to say that Christ is the mystery of God. Here he says, in the second verse in the last portion, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ, in whom hidden all the treasures of wisdom and knowledge. तो प्रेरित पौलुस यहाँ बताना चाहते हैं कि जो बुद्धि और ज्ञान का जो सारा भंडार है, वो सारी जो और जो समझ का सारा धन है, वो जो पिता का भेद है, वो मसीह में छिपा हुआ है। Here, what Apostle Paul was trying to say, when he said about the mystery of Christ or mystery of the gospel, means he was trying to tell them that the doctrine of Trinity, the truth concerning Trinity, is not known to the previous generations. तो यहाँ प्रेरित पौलुस इस बात को बताना चाहते हैं कि त्रिएकता का जो सच्चाई है, अर्थात उससे संबंधित जो सत्य है, उससे उससे जो है उसे पहले की पीढ़ी नहीं जानती थी। So, for many generations, what people were thinking was there was one absolute God, and God of Old Testament is different. God of New Testament in the Gospel is different, and God from the Acts on onwards different. तो इससे पहले लोगों का विचार क्या था? वो पीढ़ी के लोग सोचते थे कि परमेश्वर पुराने नियम का अलग है, नए नियम का परमेश्वर और सुसमाचार का परमेश्वर अलग है, और प्रेरितों के काम में जो परमेश्वर है वो अलग। So they saw that Old Testament God is very angry God, and Gospel in the four Gospels, God is very gracious, kind, and merciful. And from Acts onwards, so God who really made available to us things like that. There were different kinds of strange understanding concerning God. और लोग परमेश्वर के विषय में क्या सीखते थे, क्या जानते थे कि पुराने नियम का परमेश्वर बहुत ही क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और जबकि इस नए नियम में चारों सुसमाचार में बताया हुआ परमेश्वर दया और करुणा से भरा हुआ तरस खाने वाला परमेश्वर है, जबकि और प्रेरितों के काम के आगे परमेश्वर हर समय अपने लोगों के उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। ऐसी अलग अलग सोच जो है परमेश्वर के बारे में लोगों की थी। And the other group, what they thought was the God of the Old Testament came as Jesus Christ in the four Gospels, and then after Jesus ascended to heaven, and God again took another form as Holy Spirit. They were thinking that one God came in three different forms. और यहाँ पे लोग समझते थे कि पुराने नियम का जो परमेश्वर है वो इस धरती पर आया, और यीशु मसीह के रूप में आने के बाद वो सुसमाचारों में चारों में प्रकट हुआ। उसके बाद जब वो स्वर्ग उठा लिया गया, तो वहां से एक नया परमेश्वर जो है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, वो इस धरती पर आया। ऐसा उनका विचार है कि ये सब अलग अलग परमेश्वर है। To cut the long story short, there were two major groups. One group, they were thinking that there are three gods. The other group, one God who took three different forms. और यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर तीन है। और दूसरे समूह के लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसका रूप तीन। But both are wrong, परंतु ये दोनों गलत है, because it was a mystery. It was not known to the previous generations clearly. क्योंकि ये एक भेद है जो पुरानी पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं था। Even in these present days, unless until God gives the insight, spiritual revelation, people don't understand the truth that one God, the same one God, as three persons. That is called तो doctrine of Trinity.
तो हम देखते हैं कि अगर आज के समय में परमेश्वर अपनी आत्मिक दृष्टि को हम पर प्रकट ना करे या प्रकाशन ना दे, तो हम कभी भी नहीं जान सकते कि परमेश्वर एक है और उनका तीन व्यक्तित्व है, जिसे हम त्रिएकता का सिद्धांत कहते हैं। Even today, ethnic Jews in Israel, they don't accept that Jesus Christ is the Messiah, and they don't agree doctrine of Trinity, that one God in His being and three as persons. They don't accept. They believe absolute one God, just like Islam and same as Judaism. और हम देखते हैं कि आज भी जो एथनिक यहूदी हैं, वो जो अपने खून से वंशानुगत रूप से यहूदी हैं, वे आज भी यीशु मसीह को मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। और वह नहीं मानते कि यीशु मसीह मसीहा है, क्योंकि वो त्रिएकता के सिद्धांत को नहीं जानते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि त्रिएक जो परमेश्वर है, जो तीन व्यक्तित्व के रूप में है, वो इस सिद्धांत को ग्रहण नहीं करते हैं। और उनका कहना है कि परमेश्वर एक है और वो केवल एक ही है, जैसा कि इस्लाम में और यहूदियों की प्रथा में भी उसी प्रकार कहा जाता है। Please turn with me to Romans chapter 9, Romans chapter 11. आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 11 अध्याय। 11 chapter 11 verses 25 and 26 and 27. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in the part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob, and this is my covenant with them, which I take away their sins. और रोमियो की किताब 11 अध्याय उसके 25, 26 और 27 में ऐसा लिखा है, भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। In the Gospels, the Lord Jesus Christ clearly explained, saying that I am the way, I am the truth, and I am the Savior, I am the Messiah, but they did not accept him. और जबकि सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं ही उद्धार हूँ, मैं ही मसीहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Jesus Christ very clearly said, I and Father are one. और प्रभु यीशु मसीह ने ये स्पष्ट कहा कि मैं और पिता एक हैं। When Philip wanted to know God the Father, he says, Jesus Christ, show us the Father, that is enough. Then Jesus said, those who see me, they see the Father. Why are you asking again to show me the Father? I and Father are और one. He reiterated this truth many times in the Gospels, particularly in the book of John's Gospel. और हम देखते हैं, जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से विनती किया कि आप हमें पिता को दिखा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अभी तक नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। तो इस बात को तू क्यों नहीं समझता और क्यों ऐसा कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे। तो हम देखते हैं कि इस विशेष भेद को, कि मैं और पिता एक हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पत्रियों में प्रकट कर दिया था। In the Gospels, there are two titles frequently used. One is the Son of Man and Son of God. आप देखेंगे सुषमाचार में दो बातें बार बार रिपीट किया गया है या दोहराया गया है, एक है मनुष्य का पुत्र और दूसरा है परमेश्वर का पुत्र। And later, in the epistles, the apostles and prophets, they have clearly mentioned, saying that the Son of God, the Son of Man, and the Lord, L-O-R-D, L uppercase, and they have used these three titles to the Lord Jesus Christ because he is God.
और हम देखते हैं कि बाद में पत्रियों में आप देखेंगे कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और प्रभु, ये सारी शीर्षक हैं, ये उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग किया है। But whereas Jews treated Jesus Christ as a blasphemer, and that's the reason why they hunted after and they saw to it that he was crucified. और यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने यीशु मसीह पर ईश निंदा का आरोप लगाया कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको कोड़े खिलवाए और इल्जाम लगाकर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। And he said, I am means I am, that is a word. Actually, first we find in Exodus chapter 3, verse 15 and 16, one who revealed himself to Moses. और जो मैं हूँ शब्द जो है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए उपयोग करते थे, ये शब्द पहली बार उपयोग किया गया था जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को अपने आप को प्रकट किया था, निर्गमन की किताब 3 अध्याय के 15 और 16 में। You know the story how God, told Moses to go and see the leaders of Israel, go and see the Pharaoh, the king. और उसी समय परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी मूसा को, और कहा था कि जाओ आप इस्राएल के अगुओं को देखो और फिरौन राजा को देखो। Then he had a question. If they ask me who sent you, what should I say? What is your name? और तो उस समय मूसा ने कहा कि मुझसे वो पूछेंगे कि तुम्हें किसने भेजा, तो मैं क्या कहूंगा। There God said, I am. तब Yahweh, परमेश्वर Yahweh, I am. तब परमेश्वर ने कहा उनसे, कहना मैं हूँ, अर्थात याहवे। When Jesus Christ was revealed himself to the while he was preaching the gospel, when he was in incarnation, he was saying that I am 7 times in the book in the gospel according to John. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को सुसमाचारों में प्रकट किया, तो उन्होंने जब वो देव धारण करके इस धरती पर आए, तो उन्होंने लगभग 7 बार अपने आप को इस रूप में प्रकट किया, या उनकी पत्रियों में कहा मैं हूँ। Here, Apostle Paul says in Romans chapter 11, verses 25, and that is the mystery that blindness in the part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोमियो की किताब 11 के 25 में उस भेद को प्रेरित पौलुस ने प्रकट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल का एक भाग जो है वो अंधेपन का शिकार रहेगा जब तक कि सभी लोग प्रवेश ना कर लें। So they did not understand the doctrine of Trinity. They did not understand that Jesus is the Messiah, and so they crucified him because it was not unfolded to all, but only very few. और हम देखते हैं कि क्यों उन्होंने त्रिएकता के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, और क्यों उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्यों उन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ा चढ़ा दिया। क्योंकि ये जो भेद है वो बहुतों पर प्रकट नहीं किया गया, परंतु केवल कुछ लोगों पर यह सच्चाई प्रकट की गई। So this was the mystery of his will, the mystery of the gospel, the mystery of God, both the Father and of Christ. तो यही है वो भेद जो परमेश्वर की इच्छा का है, सुसमाचार का है, और पिता और मसीह का भेद है। And then Apostle Paul says in chapter 3 of Ephesians and verse 9, let me read it for you. And here he was declaring the insights what God gave him. और यहाँ इफिसियों की किताब 3 अध्याय के 9 में प्रेरित पौलुस इस बात को प्रकट करते हैं, और वो कहते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। Verse 8 onwards, to me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery which was from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places.
From which verse to which verse, uncle? Yeah, from verse 8, 9, 10. अब में देखते हैं इफिसियों की किताब 3 अध्याय के 8, 9, 10 में ऐसा लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। Apostle Paul says that in verse 9, what is the fellowship of the mystery which is from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things और through Christ, that has to be, declared through the manifold, through the church, the manifold wisdom of God. यहाँ पे प्रेरित पौलुस 9 वचन में बात बता रहे हैं कि यह बात मैं प्रकाशित करूं सब पर कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। So let me this is little difficult to understand, but let me reiterate, keep this in mind as we are discussing. I believe you'll be able to understand very simply. So the mystery of his will, the mystery of the gospel, mystery of God, both Father and Christ, and mystery of the fellowship of with the church. तो आप इस बात को समझने के लिए इस बात को अपने मन में रखे रहें ताकि आगे आपको सच्चाई समझ में आ जाए। ये जो भेद है उसकी इच्छा का भेद है, सुसमाचार का भेद है, पिता और मसीह का भेद है, और संगति की चर्च की संगति का भेद है। So I know that it is not easy to understand the doctrine of Trinity. One being, one God, as three different persons. It's not easy to understand, but when God gives us the insights, we will be able to believe that yes, this is true. और त्रिएकता का जो सिद्धांत है या त्रिएकता का विषय समझना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जब हमें आत्मिक दृष्टिकोण देते हैं, आत्मिक दृष्टि को खोलते हैं, तब हम इस त्रिएकता के सिद्धांत को समझ पाते हैं। So if you have to understand the mystery of Christ, you have to come to 1 Timothy chapter 3 and verse 16. और जब मसीह की भेद को आप समझना चाहते हैं तो मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 16 वचन को। There again, Paul says that there's a mystery of godliness. और यहाँ फिर वो कहते हैं कि भक्ति का भेद तो बड़ा गंभीर है। Let me read it for you. 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness. What is that? In few steps it is written, God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the Lord, received up in glory. In 6 steps. और 6 क्रम में ये एक विशेष सच्चाई को प्रकट कर रहा है। तिमुथियुस की किताब में 1 तीमुथियुस 3 के 16 में ऐसा लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया और मसीह में ऊपर उठाया गया। And it is called the mystery of godliness. 1 Timothy 3:16. There is 6 steps. So step 1, God was manifested in the flesh. That means he became human being. It is called incarnation. तो हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 में भक्ति का भेद क्या है, और भक्ति का भेद जो गंभीर है उसको 6 यहाँ बिंदुओं में समझाया गया है। उसमें से सबसे पहला बिंदु ये है कि वह शरीर में प्रकट हुआ। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य बनकर, शरीर बनकर प्रकट हुआ, जिसे हम देह धारण कहते हैं। It's a mystery. How can God the Spirit, how can God the Creator becoming an ordinary human being? How can a creator become creation? It is a mystery, but it is true. और ये एक विशेष भेद है कि कैसे परमेश्वर आत्मा है, वो कैसे एक शरीर बना, या सृष्टिकर्ता स्वयं कैसे सृष्टि बना, ये इसको जानना एक भेद है। Just by taking this one topic, we can discuss at least for more than 1 hour. See, God is everlasting God, eternal God. How he could limit himself to the time space matter?
और ये कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर जो स्वयं अनंत है, वो कैसे जो है अपने आप को समय और वस्तु और इसमें अपने आप को इस पदार्थों की सीमा में बांध सके। When you see God descending into the Mount Sinai, the people of Israel, they were frightened. They were scared. They said, Moses, we can't handle this. You please go. We will obey you. Whatever God says, we will obey you. और आप देखेंगे कि जब सिनै पर्वत में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, तो उस समय इज़राइल की पूरी प्रजा डर गई और उन्होंने मूसा से कहा कि हमें डर लगता है, इसलिए आप ही परमेश्वर से बात करें। We see in the scriptures that the Mount Sinai was burning. It was earth was shaking, and the whole creation was not able to take the very presence of God descending onto this earth. और हम देखते हैं कि कैसे सीनै पर्वत में आग पूरी जलने लगी और वो पूरी तरह से हिल गया, और वो जो छोटी सी सृष्टि है वो इतने बड़े सृष्टिकर्ता को संभाल नहीं पाई, और वहां इस प्रकार की एक बड़ी जो है हलचल हो गई। How can such great, big, awesome, amazing, wonderful God could become an ordinary human being? और ऐसा ही बड़ा अद्भुत और वो महान और जो इतना विशाल परमेश्वर है, वो कैसा एक साधारण मनुष्य बनकर धरती पे आ गया। In the Philippians chapter 2, it is written that he humbled himself so much so that he became a servant and he died on our behalf. That is the humility people could not take, people could not believe, but it is true. और हम देखते हैं कि कैसे फिलिपियों की किताब 2 के 5 में बताया गया है कि उन्होंने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अपने आप को नम्र और दीन बनाया, अपने आप को सेवक बना दिया, और एक सेवक के समान में प्रकट होकर वो मर गया और अपने लोगों के पापों के बदले मर गया। ऐसी परमेश्वर की नम्रता और दीनता को हम वहाँ देखते हैं, और ऐसी दीनता को लोग स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए लोग उसे नहीं समझ पाए। So he was justified in the spirit. That means the redemptive work was approved. Whatever the Lord Jesus Christ lived on the face of the earth for about 33 and a half years, that is accepted. Whatever the offering on the cross of Calvary, he gave his life on behalf of all the human beings, that was accepted. That was proved by the way of resurrection, by the way of ascension. He says justified in the spirit means the redemptive work was approved by God. और दूसरी बात यहाँ लिखा है कि वो आत्मा में धर्मी ठहरा। इसका मतलब क्या है कि जो भी उन्होंने छुटकारे के लिए किया मनुष्य के लिए, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, जिसमें उनका 33.5 वर्ष का इस धरती पे जीवन बिताना है, और उनके जीवन रूपी बलिदान को जो उन्होंने परमेश्वर को दे दिया, और उनका पुनरुत्थान और उनका स्वर्गारोहण, इन सारी सेवकाइयों को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इसका मतलब वो आत्मा में धर्मी ठहरा। He was seen by angels. That means it was an open exhibition by the way of resurrection. People saw, it was not in a private. And all his disciples, he revealed himself and he was ascended. They saw him when he was being ascended. और हम देखते हैं कि तीसरा विषय लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रीति से लोगों को दिखाया। स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा, पुनरुत्थान के समय में उनके स्वर्गदूतों ने देखा, चेलों ने देखा, उन्होंने अपना प्रकाशन दिया, और यहाँ तक कि स्वर्गारोहण के समय भी लोगों ने उन्हें देखा। इसका मतलब वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। And he preached among the Gentiles. The gospel was preached, and his disciples were commanded to go and preach the gospel. और चौथी बात लिखा है कि वो अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। इसका मतलब सुसमाचार का प्रचार किया गया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को कहा कि जाओ और सभी जातियों के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। Believed on in the world, that means convicted by the Holy Spirit that they were sinners and Jesus is the Lord. If they don't believe in Jesus Christ, they will be judged. और हम देखते हैं कि उसके बाद लिखा है कि वो उसने जगत ने उस पर विश्वास किया। इसका मतलब है कि लोग पवित्र आत्मा के द्वारा कायल हुए, लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, जब पवित्र आत्मा ने उनके मनों में कार्य किया। So beautifully, Apostle Paul explains in 1 Timothy chapter 3, verse 16, the mystery of godliness, the mystery of gospel, the mystery of Christ. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार पहला तिमुथियुस 3 अध्याय के 16 में जो भक्ति का विशेष भेद है, गंभीर भेद है, उसको किस प्रकार प्रेरित पौलुस ने प्रकट किया।
Just in 6 steps, God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. और ये 6 बातें जो वहां प्रकट की गई कि वह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। And Christ dwelling in a believer, this is another mystery. और मसीह जो है वो विश्वासियों के अंदर में निवास करता है, ये एक और अलग भेद है, विशेष भेद है। How can God, even when Solomon dedicating the temple, he says, the heaven is your throne and earth is your footstool, and you are a God, nothing can contain you. And how can this temple can take you? That is what he was saying. But Bible says that God dwelling in us, Holy Spirit dwelling in us. It is a mystery, but it is true. और ये विशेष भेद है कि इतना महान परमेश्वर जिसके बारे में सुलेमान ने मंदिर का अर्पण करते समय कहा कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, इतना महान और विशाल परमेश्वर जो इस धरती पर नहीं रह सकता, वो इतना महान परमेश्वर कैसे मनुष्यों के जीवन में रह सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन इस महान भेद को प्रकट करता है कि मसीह जो है विश्वासियों में वास करता है। Please turn with me to Colossians chapter 1, verses 26 and 27. Colossians chapter 1, verses 26 and 27. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amazing truth it is. और एक ऐसी महान सच्चाई है जो प्रकट किया गया है। कोलोसियों 1 अध्याय के 26 और 27 वचन में लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उसके भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Please remember, we may not be able to understand or comprehensively, but we must know. और ये तो बात तय है कि हम इसे पूरी रीति से समझ नहीं सकते, इतना हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को तो हम यहाँ जान सकते हैं, Because it is mystery. क्योंकि एक भेद है ये। It is true. ये एक सच्चाई है। These things can be understood only when Holy Spirit convicts us, gives us the insights or the revelation through the Holy Spirit. और ये तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हमें कायल करे और हमें आत्मिक दृष्टिकोण दे और हम पर अपने प्रकाशन को डाले। Let me tell you, you may be brilliant in understanding complex chemical formula, complex, algorithms and complex chemical formulae, but spiritual truths must be understood only through the convictions of the Holy Spirit. हो सकता है प्रियो इस संसार में आप बहुत बुद्धिमान होंगे, जो रसायन सूत्र के बहुत ही जटिल सूत्र को समझ लेते होंगे, एल्गोरिदम को समझ लेते होंगे, परंतु परमेश्वर की सच्चाई को और जो वचन के भेद को बिना पवित्र आत्मा के कायल हुए कोई भी नहीं समझ सकता। 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? और पहला कुरंथी की किताब उसके 6 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। It's a mystery. ये एक भेद है। So Apostle Paul says, a beautiful statement in 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians और chapter 4. और ऐसी महान सच्चाई को प्रेरित पौलुस प्रकट करते हैं जो दूसरा कुरंथी की किताब 4 अध्याय में है। I was always amazed whenever I read this verse. और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। 2 Corinthians 4:7. We have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God, not of us. और दूसरा कुरंथी 4 के 7 में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। What kind of treasury is talking about?
और कौन सी वो धन के बारे में बात करते हैं? He's talking about the light, which commanded God to, to exist in our hearts. We find it in the earlier verses. We will read from verse 4. Whose minds the God of this age has blinded, who did not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. और ये जो लिखा है धन, वो धन क्या है? ये धन वास्तव में वो ज्योति है, वो आज्ञा है जो हमारे हृदयों में बताया गया है, जो कि हम चौथे वचन से समझ सकते हैं। वहाँ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। And then verse 6, for it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give light, the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. And then he says, we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God, not of us. और जो छठवें और सातवें वचन में इस प्रकार समझाया गया है प्रेरित पौलुस के द्वारा, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Dear brothers and sisters, I'm really amazed. How can God of all creation can come inside my life, can dwell within me? It is difficult to understand, but it is true. But it is true. Now, Holy Spirit is dwelling in my heart, in my life, in every believer's heart, in every believer's life. That's what the word of God. That's what the word of God says. और ये बड़ी आश्चर्य होता है मुझे भी कि कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर रहता है, वास करता है। और ये सत्य है प्रियो, हमें इसे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय और हमारे जीवन में रहता है, और ना ही हमारे परंतु प्रत्येक विश्वासियों के हृदय में और जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं। So let me brief out what we have learned so far. तो आइए हम इन सारी चीजों को संक्षेप में अध्ययन करें जिसे हमने अभी तक सीखा है। The doctrine is the mystery. Doctrine of Trinity is the mystery, but it is true. तो त्रिएकता का जो सिद्धांत है, ये जो है एक भेद है, One परंतु ये God, सत्य है। one God, but three persons: God the Father, the Son of God Jesus Christ, and God the Holy Spirit. और एक परमेश्वर लेकिन तीन व्यक्तित्व के साथ, पहला पिता परमेश्वर, दूसरा पुत्र परमेश्वर, और तीसरा पवित्र आत्मा परमेश्वर। And God the Father, the Son of God Jesus Christ, and Holy Spirit absolutely equal in all matters, but each one humbled themselves so much so that we enjoy the salvation. God, God the Father planned, God the Son Jesus Christ executed, and God the Holy Spirit applied it. So the the Trinity, God of God the Trinity, function in such a way that one God executed the plan of salvation, one God performed it and applied it. तो हमने देखा कि किस प्रकार पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, तीनों समान हैं, तीनों सारे विषयों में समानता रखते हैं, तीनों तीन हैं, और तीनों ने किस प्रकार उद्धार को प्रकट किया है। परमेश्वर पिता ने योजना बनाया, पुत्र ने पूरा किया, और पवित्र आत्मा ने आज उसे हम पर लागू किया। So when we see God the Father, we understand God the Son Jesus Christ and God the Holy Spirit. And also when we see Jesus Christ, we find God the Father, we find God the Holy Spirit. When we see when Holy Spirit dwelling in us and Christ is dwelling in us and God the Father is dwelling in us, we cannot divide, but they are so perfectly united just as one God, and but three different persons. और हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर को देखते हैं
तो उसमें पुत्र और पवित्र आत्मा हमें नजर आते हैं। अगर हम पुत्र को देखते हैं तो उसमें परमेश्वर और पवित्र आत्मा नजर आते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा को देखते हैं तो उसमें परमेश्वर और मसीह की एकता नजर आती है। इन तीनों को हम विभाजित नहीं कर सकते, परंतु ये तीनों व्यक्तित्व में एक है। So that is a mystery concerning doctrine of Trinity. यही भेद है जो त्रिएकता के सिद्धांत को प्रकट करता है। And secondly, we have seen the doctrine, the mystery of Christ, how God the Spirit, eternal God the Spirit, became human. He is God and also human. और हम देखते हैं कि मसीह का जो भेद है वो कितना महान है, क्योंकि वही परमेश्वर जो आत्मा है वो किस प्रकार मनुष्य बनकर देह धारण करके इस धरती पर आया। And thirdly, we have seen that partially God has commanded Jews to be blinded so that the plan of salvation is accomplished, and they crucified Jesus Christ thinking that he is a blasphemer. They did not accept him as Messiah, but in fact he was the Messiah. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनको कठोर कर दिया, अर्थात उन्हें उनके हृदय को अंधा कर दिया। और इसी के कारण परमेश्वर की उद्धार की योजना पूरी हुई, अर्थात उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और वही वास्तव में परमेश्वर की उद्धार की योजना थी जो इस धरती पर पूरी हो, क्योंकि उन्होंने मसीह पर इस निंदा का आरोप लगाया और परमेश्वर की निंदा करने का आरोप लगाकर उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। And then we see that God dwelling in my heart, in my life, it is again a mystery. और अगली बात देखते हैं कि परमेश्वर कैसे मेरे हृदय में और जीवन में वास करते हैं। ये फिर से एक बड़ा भेद है। And next we see that Christ and the church, it is again a mystery. The Bible says that उसके बाद Ephesians chapter 5 and verse 32, I think it is. It is not 2. Ephesians chapter 5, it is verse 32. It is a great mystery. Christ and the church is great mystery. Verse 32, yes. Let me read verse 31 also. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. और यहाँ कलीसिया और मसीह के भेद को बताने के लिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की किताब 5 अध्याय के उसके 31 और 32 में से कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। The church is treated as bride, and Christ is treated as bridegroom, just like husband and wife, how they are united as husband and wife. And Bible says that Christ and the church, they are united, they are one. It is a mystery, but it is true. और हम देखते हैं कि किस प्रकार चर्च को कलीसिया को दुल्हन के रूप में प्रकट किया गया और मसीह को दूल्हे के रूप में प्रकट किया गया है। और जिस प्रकार पत्नी और पति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार ये दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात मसीह चर्च से जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़ा भेद है, लेकिन ये सत्य है। And then the kingdom of God, to know the truths concerning the kingdom of God, it is a mystery. It is not everybody will understand those truths concerning the kingdom of God. और हम देखते हैं तीसरा जो भेद है वो परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर के राज्य के भेद को भी हर कोई नहीं समझ सकता। The Lord Jesus Christ himself says that this is not granted to everybody. See, Matthew's Gospel chapter 13 and verse 11. He answered and said to them, verses 10 and 11, and disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but not to them. It has not been given to them. और यहाँ देखते हैं कि प्रभु ने परमेश्वर के राज्य के भेद को हर किसी को नहीं समझाया है, परंतु कुछ को समझाया है, जो कि मत्ती सुसमाचार की किताब उसके 10 और 11 में लिखा है। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है?
उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। So the mystery of kingdom of God is not given to many people, only few people. I tell you, after accepting Lord Jesus Christ as a personal savior, we begin to understand many truths concerning kingdom of God, but not people around us. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के राज्य के भेद को हर किसी को नहीं समझ में आएगा, परंतु उसकी समझ किसी किसी को ही दी गई है। और जब हमने प्रभु प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब हमें इस भेद को हमें समझ में आया है। God ruling our lives as king. और परमेश्वर जो है राजा के समान हमारे जीवन में शासन करते हैं। So it's a mystery और एक बड़ा भेद है कि because परमेश्वर किस प्रकार एक राजा के समान हमारे जीवन में शासन करते हैं। before we accepted Jesus Christ as our personal savior and Lord, we were we were slaves to the devil, slaves to the world, slaves to Satan, and slaves to many dirty habits on the face of the earth. When Jesus came as king into our life, and he became our boss, he became our king, he became our ruler. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले हम गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, शरीर के गुलाम थे, गलत आदतों के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। लेकिन प्रभु ने हमें इन सब से छुड़ाया और आज हम यीशु मसीह के दास बन गए। So it's a mystery. It's a mystery. ये वास्तव में एक भेद है। And then Apostle Paul says that 1 Corinthians 15:51, the rapture and the resurrection, it is again going to be a mystery how those amazing transformation which is going to take place, it is a mystery. और प्रेरित पौलुस फिर से कहते हैं कि किस प्रकार विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे और उनका पुनरुत्थान होगा। ये फिर से एक बड़ा भेद है, जो कि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 51 में लिखा है कि किस प्रकार सब बदल जाएंगे। Let me read it for you, 1 Corinthians 15 and 51. I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. From this corruptible must put on an incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall we brought to pass, saying that death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? पहला कुरिन्थी की किताब 15 अध्याय उसके 51 से 55 तक हम जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर ही फूकते ही होगा, क्योंकि तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। And then there is going to be a mystery of lawlessness, chapter 2 and verse 7, talking about the Antichrist in the days to come at the time of second coming of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ये जो एक और सच्चाई है, एक भेद जो है, ये भेद की बातें हम समझेंगे। और जिसको अभी तक एक रोकने वाला रोका हुआ है, लिखा है, जो कि दूसरा थिस्सलुनीकि की किताब उसके दूसरे अध्याय के 7 वचन में लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब तक करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो वह रोके रहेगा। ये है अधर्म का भेद। Yeah, thank you, brother. Same thing I'm reading in English also. For the mystery of lawlessness is already at work. That means Antichrist is already working. Only he who has restrained will do so until he is taken out of the way. He means Holy Spirit.
That's what the theologians say, that because uh, uh, the second coming of the Lord Jesus Christ, when he comes, then till such time Antichrist keep working, but Antichrist wants to reveal himself, but Holy Spirit is restraining because God executes everything according to his timetable. और चूंकि परमेश्वर अपने समय योजना के अनुसार सब कुछ करेंगे, चाहे वो मसीह यीशु के दोबारा आगमन की बातें हो, शैतान और जो मसीह विरोधी है वो तो इसे प्रकट करना चाहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा इसे रोके रहेगा ताकि ये सारे कार्य परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर हो। And then we find in Revelation 17 and 18 mystery Babylon. That means the Satan is going to be utterly destroyed at the second coming of the Lord Jesus Christ. We find in Revelation chapter 19. और हम देखते हैं जो अगला है वो है बेबीलोन का भेद, जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब 17 और 18 में लिखा है, और 19 में कि किस प्रकार शैतान जो है नाश किया जाएगा। Even 1 Timothy chapter 3 verse 19 says that very faith itself is a mystery. और पहला तिमुथियुस अब 3 अध्याय के 19 में जब जाएंगे तो वहाँ ये भी लिखा हुआ है, वर्ष वर्ष अंकल। Chapter 3 and verse 9. 1 Timothy chapter 3 and verse 9. और पहला तिमुथियुस, यस यस सर। Yeah, और this पहला तिमुथियुस 3 के 9 में देखेंगे कि प्रेरित पौलुस जो है तिमुथियुस के खत को लिख के बताते हैं कि विश्वास का जो भेद है वो भी एक बड़ा विशेष भेद है। when he was talking about the recruitment of deacons, he says that every deacon should have this particular character. What is that character? He should hold the mystery of the faith with a pure conscience. और जब वो प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया में सेवकों को नियुक्त करते हैं और उन सेवकों को शिक्षित करते हैं कि उन्हें किस प्रकार का चरित्र होना है, उसमें ये वचन वो बताते हैं पहला तिमुथियुस 3 के 9 में कि पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। A Christian is a man involved with mysteries. और एक मसीही जन वास्तव में एक ऐसा मनुष्य है जिसमें भेद छुपा होता है। He is saved by faith. हम उद्धार के द्वारा बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। Yes, God is sovereign, and uh, God chooses, God calls, and God justifies, God sanctifies, and God glorifies us. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने हमें चुना है, परमेश्वर ही है जिसने हमें बुलाया है, परमेश्वर ही है जिसने हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ही है जिसने हमें पवित्र किया है, और परमेश्वर ही है जिसने हमें महिमा से भरा है। That's called golden chain. We find it Romans chapter 8. But at the same time, humans are responsible. Not just God is sovereign. Yes, God is sovereign. But at the same time, humans are also responsible, and we have our part in the sovereignty of God's will. That is an amazing. It's by faith. It is true. और रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय में जब आप जाएंगे तो इस वचन की सच्चाई को हम पढ़ सकते हैं, जो 30 वचन में लिखा है कि इसे हम गोल्डन चेन कहते हैं। परंतु दूसरी रीति से देखते हैं कि मनुष्य भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना परमेश्वर ने उसे अनुग्रह किया है। ये बड़ा भेद है और ये बातें हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा पूरी होती है। It is a mystery, but by faith we believe it, but we understand it. और ये बड़ा भेद है परंतु विश्वास के द्वारा हम इसे समझ पाते हैं। And one more point, let me tell you and then conclude. एक और बिंदु को हम देखेंगे, उसके बाद हम The इसको संक्षिप्त gospel में is a समाप्त। mystery. Gospel is a mystery which says that Gentiles are the partakers of the promise given to Jews. So in the Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34, the promise was given to the Jews, but this has been applied to the Gentiles, and both Gentiles and Jews become one part, one church. और अगला जो भेद है वो क्या है, सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार अन्य जातियों को, यहूदियों को जो वाचा दी गई है उसके वो भागी हो गए हैं। और ये जो सच्चाई है, एक सच्चाई का भेद वचन सुसमाचार के द्वारा प्रकट करता है। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय के 31 से 34 के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ वचन में लिखा है कि किस प्रकार कि इज़राइल की जो
और ये यहूदा के साथ में जो नई वाचा बांधूंगा, इस वाचा के द्वारा किस प्रकार ये लोग भागी होंगे, ये बातें वहां लिखा हुआ है। In the Luke's Gospel, chapter 22, the Lord Jesus Christ, after Passover, he inaugurates the Lord's table, in Luke's Gospel, chapter 22 and verse 20. और लूका की किताब 22 अध्याय में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह का भोज लिया था, वहां पर इस बात को कहा। This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. और उन्होंने कहा, इसी रीति से उसने भोजन के बाद यह कटोरा, या कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। It is an amazing truth. Gentiles are partakers of the promise that is given to Jews. और ये अद्भुत सच्चाई है, जिसमें हम देखते हैं कि अन्य जाति लोग यहूदियों को जो मिली हुई वाचा के भागी हो गए। This was possible because Apostle Paul says this is a mystery that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. और यही वो सच्चाई है जो प्रेरित पौलुस ने भी रोमियो की किताब 11 के 25 में प्रकट किया, कि किस प्रकार इज़राइल का एक भाग अंधा रहेगा, अर्थात उसको वो कठोर रहेगा जब तक कि सभी अन्य जाति लोग इसमें पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें। So the second part in chapter 3, God willing, we will see in the next study. तो परमेश्वर ने चाहा तो इफिसियों की किताब 3 अध्याय के अगले भाग को हम अगले अध्ययन में देखेंगे। Today we were trying to understand the the mystery, that is said in Ephesians chapter 3. और आज हमने इफिसियों की किताब अध्याय 3 में जो विशेष कई प्रकार के भेद हैं, तो उसको अध्ययन करने की कोशिश की है। And elsewhere in different parts, we have tried to collect all different mysteries in the Bible said in a very brief manner. और हमने बहुत संक्षिप्त रूप में बाइबल में जो विशेष प्रकार के बहुत सारे भेद छुपे हुए, उन भेदों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश की है। May be difficult to understand in one go. Since it is recorded, it will be posted in the group, and I request you to prayerfully go through again and again, take notes. Definitely, it will be a blessing for you. और चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो इस ग्रुप में है, जरूर आप इसे बार बार देखें और इसके भेद को, सच्चाइयों को अध्ययन करके इसे जानने की और समझने की अच्छे से कोशिश करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Over to you. परमेश्वर पिता, थैंक यू अंकल। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज हमने इफिसियों की किताब अध्याय 3 अध्याय के पहले भाग को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने भेदों के बारे में अध्ययन किया है कि किस प्रकार उस भेद का प्रकाशन पौलुस को प्रकट हुआ, और उन्होंने संक्षेप में हमें भी बताने की कोशिश की कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता है। परमेश्वर पिता, इन सच्चाइयों को समझने के लिए हमारी सहायता करें। हमारे बीच में अगर ब्रदर अरविंद सूर्यवंशी जी हैं, तो आखिरी धन्यवाद की प्रार्थना करके हमें आशीष वचन दे के विदा करेंगे। ब्रदर अरविंद सूर्यवंशी जी लाइन में है? ओके, तो शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। आइए हम मिलकर दुआ करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दया के धनी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के भेद को समझने के लिए। आज आपने हमारी सहायता किया, नए नियम के सर्वेक्षण में, इफिसियों की पत्री में आपने हमें उस भेद को बताया प्रभु जी, जो कि मसीह और चर्च का भेद है, और जो पिता परमेश्वर सुसमाचार का भेद है, विश्वास करने का भेद है, भक्ति का भेद है, और कई प्रकार के भेदों के बारे में, आपने रहस्यों के बारे में हमें आत्मिक दृष्टि के द्वारा और वचन के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझने में सहायता किया। आने वाले समय में प्रभु जी और इस भेद को मैं समझने के लिए मदद कीजिए, ताकि आपके दूसरे आगमन से पहले हम और हमारी कलीसिया आपके लिए तैयार हो सके। महिमा आपको मिल जाए। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज के अध्ययन में आपने सहायता की, उसके धन्यवाद देते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना आशीष मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम संगति हम सबके साथ, परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। Thank you very थैंक much, यू अंकल brother. जी। You are a very थैंक good यू, translator. God bless you, brother. थैंक यू अंकल। Yeah, yeah, very good.
थैंक यू ब्रदर सुखदेव भाई। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू ब्रदर नारायण ध्रुव, जय मसीह की भाई। रवि किस्कू भाई, जय मसीह की, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। प्रभु की गुड इच्छा नाइट। फिर मिलेंगे। जी, जय मसीह की सर, जय मसीह की। जय ओके। जय मसीह की। गुड नाइट।